Hello, all my dear students. Good morning to all of you. How are you all, guys? I hope that you all will be fit and fine, and your studies will be at your best, and there will not be any problem during your studies, and all the concept will be crystal clear after watching the videos. So, all my dear students, today I am here with a new video of your chapter number 5, that is Principle of Inheritance and Variation, and today we will study about the gene mutation in sex chromosome. Up till now, all my dear students, we have discussed about the gene mutation in autosomes, in which we have discussed about the autosomal recessive disorders. Those were the part of your NCERT and part of your competitive examination, as well as we have also discussed autosomal dominant disorders. Those were very important for your competition as well as for your board examination. In autosomal dominant disorders, we have discussed only 3 because rest of those are not much significant, and here today we are starting with gene mutation in sex chromosome. Okay, so here we will discuss 2 very important topics or diseases or disorders. Those are part of your NCERT and part of your competitive examination, as well as always from this topic a particular question is asked in your board and various other examination. So, sex linked disorders, it means that here the defective gene that will be present on sex chromosome. अभी तक हमने देखा कि जो डिफेक्टिव जीन था दैट वाज प्रेजेंट फ्रॉम क्रोमोसोम पेयर नंबर 1 टू क्रोमोसोम पेयर नंबर 22. इट मीन्स दैट ऑन ऑटोसोम, बट हियर द डिफेक्टिव जीन इज प्रेजेंट ऑन sex chromosome. So let's see, suppose this was a DNA sequence, ठीक है बेटा, और इसके पास क्या था, it has both the normal genes. अगर इसके पास नॉर्मल जीन था और ये पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम आपको दिखाया गया है मान लीजिए, तो ऐसी कंडीशन में द पर्सन will not suffer from any kind of disease. It means that here a smiling face. दूसरी सिचुएशन क्या है बेटा, let's consider this situation. If here a particular gene is mutated and second one is normal, in this condition, in the case of boys, it will suffer from disease, यानी बीमारी हो जाएगी इस बच्चे में और इसका मुंह लटक जाएगा. ठीक है. इफ़ यू कंसिडर गर्ल्स, दे विल नॉट सफ़र फ्रॉम एनी डिजीज, स्माइली फेस, बट ये तो क्या है, डिजीज्ड हैं, दे विल बी कैरियर. इसका मतलब एक सिंगल डिफेक्टिव जीन बॉयज़ में डिजीज़ करा सकता है लेकिन वो फीमेल्स में डिजीज़ नहीं करा पाता है. दैट्स वाई द फीमेल इज़ व्हाट, कैरियर. वाई? Because as we know, in the case of boys there is presence of single X chromosome, and all the disorders, or we can say that most of the disorders are X linked. So if there is a defective copy of a single gene on X chromosome, that will affect, and here to affect the girls there should be 2 defective copies of the gene. दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव कॉपी होनी चाहिए. इस वजह से यहाँ पे अगर एक है तो ये क्या करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेट्स कंसीडर द सेकेंड वन. दिस इज द थर्ड सिचुएशन. दिस वन इज ऑल्सो म्यूटेटेड, दिस वन इज ऑल्सो म्यूटेटेड. इन दिस केस बॉयज विल ऑल्सो सफ़र फ्रॉम डिजीज. बॉयज भी क्या करेंगे, डिजीज से सफ़र करेंगे, एंड इन दिस सिचुएशन गर्ल्स विल ऑल्सो सफ़र फ्रॉम डिजीज. तो बॉयज और गर्ल्स दोनों डिजीज से सफ़र करेंगे. हियर बॉयज विल सफरिंग फ्रॉम डिजीज एंड गर्ल्स वर नॉर्मल, एंड हियर देयर वाज नो डिजीज. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस डिजीज एंड कैरियर सिचुएशन. अब मान के चलते ये जो दोनों जीन हैं ये नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है. यहाँ पे अगर एक जीन म्यूटेटेड है दूसरा नॉर्मल है, तो ये जो म्यूटेटेड जीन है ये चाहे रिसेसिव फॉर्म में ही क्यों ना हो, ये अपना कैरेक्टर दिखा देगा. ठीक है. कहाँ, बॉयज़ में. फीमेल्स में भी दिखाएगा, फीमेल्स हो जाएंगी कैरियर. अगर दोनों डिफेक्टिव जीन है फ़र्क नहीं पड़ता वो डोमिनेंट या रिसेसिव स्टेट में, दे विल एक्सप्रेस.
So this is all about the concept of your genetic disorder. The first disorder that we'll discuss here is hemophilia. Hemophilia. This is quite common disorder, and as you know, X-linked, or we can write sex-linked genetic disorder. Sex-linked genetic disorder mostly affect males, and generally females are carrier. ओके बेटा, यानी इस डिजीज की अगर हम बात करें हीमोफीलिया की, तो ये एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है और सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है, एंड हियर मेल्स आर अफेक्टेड एंड जनरली फीमेल्स आर कैरियर, बट देयर इज वेरी लेस और वेरी रेयर चांस, 1 करोड़ के आसपास संतानें होंगी तो उसमें एक को हीमोफीलिया हो सकती है, बट जो मेल्स होते हैं उनमें इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कॉमन 5 से 6 हज़ार में आपको मिल जाएंगे. बट इन द केस ऑफ फीमेल्स रेयर, बिकॉज टू बी डिजीज्ड फीमेल देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ बोथ डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन ऑन बोथ क्रोमोसोम्स. एक्स दो क्रोमोसोम यहाँ पे दिख रहे हैं, दोनों पे डिफेक्टिव कॉपी होनी चाहिए, जो कि जनरली नहीं होता है. Okay beta, so let's consider some stats. This is also known as royal disease because quite common in the royal family of UK or Europe. Royal disease or bleeders disease because bleeding do not stops even by minor cuts. अगर एक छोटा सा भी कट लग जाएगा बेटा तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, एंड दैट में लीड टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, एंड दिस इज नोन एज रॉयल डिजीज because it was quite common in the royal family of the London in Queen Victoria family. Okay, this was the second point. Let's consider the third point, types. You will consider hemophilia A, hemophilia B, hemophilia C. So hemophilia A, this is absence of anti-hemophilic globulin or factor number 8 in your body for clotting of the blood. There are various factors those are responsible. So if in our body factor number 8 is absent, that may also affect the mechanism of clotting of the blood. So in hemophilia A, anti-hemophilic globulin or factor number 8 is absent. Here in the case of hemophilia B, absence of plasma thromboplastin, absence of plasma thromboplastin, or we can write factor number 9. And in the case of hemophilia C, here is absence of factor 11. So hemophilia may be of 3 types on the basis of absence of factors in our blood that may ultimately affect the clotting mechanism of blood. Okay beta, this is known as royal disease. This is known as royal disease because spread in
रॉयल फैमिली ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन लंदन। कुछ लोग इसको बेटा यूरोप भी लिखते हैं। एंड अर्लियर देयर वॉज नो अफेक्टेड पर्सन इन क्वीन फैमिली but due to gene mutation this disease appeared in her family। बेटा जो पहले रॉयल फैमिली थी उसमें कोई भी डिजीज नहीं थी, बट हुआ क्या कि वहाँ जीन म्यूटेशन हो गया क्वीन विक्टोरिया में और उनको ये डिजीज़ तो नहीं हुई, वो कैरियर हो गई। उसके बाद चूँकि रॉयल फैमिली का एक रीति रिवाज है, वो अपने घराने में ही शादी करते हैं। कहने का मतलब एक रॉयल फैमिली है, उसी रॉयल फैमिली में एक मेल और फीमेल जो है एक दूसरे से शादियाँ कर लेते हैं। तो चूँकि ये क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी, इसकी वजह से इसकी जो संतानें थीं उसमें मेल और फीमेल दोनों थी। हुआ क्या कि जितने भी फीमेल्स हुई वो कैरियर हो गई, जितने भी मेल हुए वो अफेक्टेड हो गए और धीरे धीरे ये पूरी फैमिली में फैल गया। सो दिस इज नोन एज व्हाट? रॉयल डिजीज ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन लंदन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस वन इज द लास्ट, follow the pattern of criss-cross inheritance। यानी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हीमोफीलिया है ये किस पैटर्न को? क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करती है। व्हाट इज द क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस? In criss-cross pattern of inheritance, boys are not affected in F1 generation, girls are carrier, but in F2 generation boys got affected. It means that from father boys or sons will not be affected in the F1 generation, बट इट्स ग्रैंड सन विल बी अफेक्टेड इन F2 जनरेशन। यानी हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों में क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है इनहेरिटेंस का, जिसमें जो पिता होता है वो F1 जनरेशन में अपने जो सन यानी बेटे को ये डिजीज़ नहीं दे सकता। यानी हीमोफीलिया में फादर से, ठीक है, सन को ये डिजीज़ नहीं हो सकती, बट दिस डिजीज़ विल स्प्रेड इन द ग्रैंड सन एंड स्प्रेड इन द ग्रैंड सन थ्रू कैरियर डॉटर। यानी जो पिता है वो अपनी बेटी को ये डिजीज़ कैरियर के रूप में देता है। वो नॉर्मली सर्वाइव करती है बट कैरियर होती है, और उसी कैरियर बेटी से आगे F2 जनरेशन में वो स्प्रेड हो जाता है। इसी को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम फादर टू ग्रैंड सन through daughter in F2 generation. We will understood this concept by means of a cross, and after seeing that cross there will not be any doubt. So let's discuss the concept with a cross. Okay बेटा, अब यहाँ से हम देखेंगे एक्चुअली होता क्या है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये हीमोफीलिया में होता है। और हीमोफीलिया में बेटा जो मेल्स होते हैं वन अफेक्टेड आउट ऑफ 7,000 एंड इन फीमेल्स वन अफेक्टेड आउट ऑफ 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ में से बेटा एक फीमेल को होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर।
ओके, अब यहाँ से हम देखेंगे व्हाट इज क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। लेट्स कंसीडर फीमेल। तो बेटा फीमेल क्या होगी? एक्स एच एक्स एच। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अगर फीमेल में लिखा हुआ है एक्स एक्स और इट हैज रिटन एज एक्स एच एक्स एच, ये क्या होगी? नॉर्मल फीमेल। इफ इट इज रिटन एज एक्स एक्स एच और एक्स एच और एक्स एच, ये क्या होगी? कैरियर फीमेल। इफ इट्स रिटन एज एक्स वाई और एक्स एच वाई, दिस विल बी नॉर्मल मेल। इफ इट इज रिटन एज एक्स एच वाई, इट मीन्स दैट ये क्या होगा बेटा? अफेक्टेड मेल होगा। ओके, अब यहां से हम एक क्रॉस करा रहे हैं जिसमें ये क्या है? अब आप वहां से देख के बताओ। दिस इज नॉर्मल नॉर्मल फीमेल। इसको आप कैसे लिख सकते हो? एक्स एक्स, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। इट्स क्रॉस्ड विथ अ फीमेल, सॉरी इट्स क्रॉस्ड विथ अ मेल दैट इज व्हाट? अफेक्टेड। ये क्या है? अफेक्टेड मेल। P generation, as you know there will be formation of gametes. Here there will be also formation of gametes. Here there will be formation of two gametes. Those will be XH और एक और आप लिख सकते हो XH। चूंकि एक ही तरह के गैमेट बन रहे हैं इस वजह से इसको आप एक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Here there will be formation of two gametes again. Okay. So what will be the possibility in F1 generation? Let's make a Punnett square. Okay. तो ये हुआ फर्स्ट। लेट्स कंसीडर द सेकेंड। एक तरफ आप मेल ले लीजिए बेटा, एक्स एच और वाई। एक तरफ आप फीमेल को कंसीडर करिए, एक्स एच और एक्स एच। यानी ये आप सिंपल एक्स एक्स भी लिख सकते हो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी एक्स एच एंड एक्स एच, सेकेंड पॉसिबिलिटी एक्स एच एंड वाई, थर्ड पॉसिबिलिटी एक्स एच एंड एक्स एच, थर्ड पॉसिबिलिटी एक्स एच एंड वाई। अब यहाँ से देखो ये क्या होगा? दिस इज वॉट? दिस इज मेल, this one is also male, this one is what? Female, female। अब यहां से देखिए बेटा दोनों के दोनों मेल क्या है? बोथ 50% मेल आर नॉर्मल, ठीक है, एंड 50% यहां से देखिए 50% फीमेल्स आर कैरियर। यानी बेटा जैसा मैंने आपको बताया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है? अगर फादर अफेक्टेड है तो उसके सन में F1 जनरेशन में वो डिजीज नहीं जाती है, ठीक है। ये सिचुएशन आपको कहाँ मिली? ये सिचुएशन आपको मिली F1 जनरेशन में। F2 जनरेशन में क्या होगा? F2 जनरेशन में बेटा आपको क्रॉस कराएंगे। यहाँ से देखिए F2 जनरेशन में क्रॉस कराइए। ये किसको ले लीजिए? एक्स एच, दूसरा एक्स एच। यानी ये क्या है? ये है कैरियर और फीमेल। दूसरा आप ले लीजिए यहाँ से क्रॉस विथ नॉर्मल मेल, एक्स एच एंड वाई। दिस वन इज नॉर्मल मेल। अब यहाँ से गैमेट्स बनेंगे ना। यहाँ से देखिए गैमेट्स कैसे बन रहे थे बेटा? यहाँ से हमने क्या लिया? कैरियर फीमेल, दिस वन इज नॉर्मल मेल, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विल बी हियर। और एक प्यूनिट स्क्वायर आप बनाएंगे। हियर देयर इज अ प्यूनिट स्क्वायर। अब यहाँ से अभी हम पॉसिबिलिटीज फाइंड करते हैं। इधर आप मेल ले लीजिए, तो मेल क्या है? एक्स एच और वाई जो कि नॉर्मल है। फीमेल्स आर कैरियर एक्स एच एंड सेकेंड वन इज एक्स एच। पॉसिबिलिटी क्या है? एक्स एच एक्स एच एक्स एच वाई एक्स एच एंड
एक्स एच एंड वाई। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? यहां से देखिए बेटा 25% फीमेल्स नॉर्मल, 25% फीमेल्स कैरियर, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये कैरियर है। अगेन 25% मेल नॉर्मल, देखिए ये जो मेल आपको दिख रहा है ये नॉर्मल है। अगेन 25% मेल अफेक्टेड, यानी बेटे में तो नहीं गया, यहां से देखो बेटे में नहीं गया था, यहां पे क्या थे, बोथ 50% जो मेल थे वो नॉर्मल थे। यहां पे मेल क्या थे, मेल वाज नॉर्मल, फीमेल्स वर कैरियर, बट जो कैरियर फीमेल थी वो डिजीज लेके चली आई कहाँ, मेल में, कहाँ, F2 जनरेशन में। तो सच पैटर्न इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगर आपको बेटा एक्स एच और इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्रॉस ऐसे भी करा सकते हैं जो मैंने यहाँ पे कराया है, एक्स एक्स और एक्स एच वाई, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन से भी कराओगे तो रेशियो वही आएगा। तो आप इस कॉम्बिनेशन से भी कराओ, कैसे इससे कराओगे तो आपको वही एक्स एक्स गैमेट, यहाँ पे एक्स एच और वाई बनेगा, ठीक है। तो सिचुएशन वैसी ही इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ये इसके साथ, तो सिचुएशन वैसे ही आएगी जैसे इसमें आई है। सो दिस वन इज आई थिंक मोर कॉम्प्लिकेटेड, सो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हीमोफीलिया। We will consider 2 or 3 cases by considering some other examples in which male and females are carrier, males and females are affected, and what will be the possible ratios. Let's find out. ओके बेटा, कुछ क्रॉस आप कराइए। फर्स्ट एक्स एच एक्स एच, यहाँ पे ले लीजिए एक्स और वाई। इसका मतलब क्या है, दिस वन इज कैरियर वोमेन एंड दिस वन इज नॉर्मल मेल। इस सिचुएशन में क्या होगा, इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। कितने गैमीट्स बनेंगे यहाँ से, एक्स एच और एक्स एच। यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे एक्स एंड वाई। व्हाट विल द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इज हियर दैट एक्स एच एक्स। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज हियर एक्स एच वाई। थर्ड पॉसिबिलिटी इज हियर एक्स एक्स एच। फोर्थ पॉसिबिलिटी इज हियर एक्स एच वाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स एक्स एच, ठीक है। यानी ये क्या है, नॉर्मल फीमेल, दिस वन इज व्हाट, नॉर्मल मेल, सी इज कैरियर फीमेल, ही इज डिजीज्ड मेल। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर नॉर्मल मेल और कैरियर वुमन के साथ होगा तो एक मेल है वो अफेक्टेड हो जाएगा, ये आपका होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई तरीके से कैसे कर सकते हैं, अगर ये कैरियर वुमन थी बेटा तो हम इसको लिख सकते थे एक्स एच, सी इज कैरियर वुमन। मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ। दूसरा, अगर नॉर्मल मेल की बात की जा रही थी तो ये इसके पास क्या होगा, एक्स वाई, दिस वन इज व्हाट, नॉर्मल मेल। क्या होगा बेटा, यहाँ से गैमेट्स बनेंगे एक्स और एक्स एच, ये ज़्यादा सही लग रहा होगा आपको, एक्स और वाई। क्रॉस करा दीजिए ऐसे ही, आप यूनिट स्क्वायर में बना सकते हैं एक्स एक्स नॉर्मल, ओके, एक्स वाई नॉर्मल, अगेन एक्स एक्स एच कैरियर, अगेन एक्स एच वाई। अब ये देखो ये क्या है, दिस वन इज नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल एंड डिजीज्ड मेल। तो ये दोनों तरीके से आप बनाएंगे, ये ज़्यादा आसान है आपके लिए। यू कैन यूज़ दिस मेथड, दैट इज ऑल्सो 100% करेक्ट। ये क्या है बेटा, 100% करेक्ट है, बट हम जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर यहाँ पे दिखाया गया है, डोमिनेंट पे नहीं, रिसेसिव पे है। सो यू कैन यूज़ बोथ द मेथड। सो दिस वाज द सिचुएशन नंबर 1। इन सिचुएशन नंबर 2 में आपको 2 होमवर्क दे रहा हूँ। सिचुएशन 2 में आप कंसीडर करोगे और सिचुएशन 3 यहाँ पे आप ले लीजिएगा नॉर्मल फीमेल और दूसरा ले लीजिएगा हीमोफिलिक
मेल, इसका क्रॉस कराएंगे आप। तीसरी कंडीशन एक और ले लीजिए, कैरियर वुमेन, और इसका कराइएगा हीमोफिलिक मेल के साथ। अब इसी तरह से सेम होती है कलर ब्लाइंडनेस, जो हम देख लेंगे यहाँ से। ठीक है बेटा, यहाँ से देखिए कलर ब्लाइंडनेस से मैं आपको तेज़ी से बताऊंगा क्योंकि सारी चीज़ें सिमिलर हैं। कहाँ, हीमोफीलिया से। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर in which affected person is not able to distinguish between red and green color। यानी ये कलर ब्लाइंडनेस में बेटा जो अफेक्टेड पर्सन है वो लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ से बेटा जनरली फीमेल्स आर कैरियर एंड मेल्स आर अफेक्टेड। यहाँ पे बेटा जो मेल होता है वो 8% और जो फीमेल्स होती है उसमें ये डिजीज 0.4% में होती है, यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, एकदम हीमोफीलिया के ही तरह है। ठीक है, और अगर यहाँ पे सिचुएशन है पहली डिजीज वाली, डिजीज्ड मेल, तो उसको आप लिखेंगे कैसे, XCY। ठीक है, अगर वो क्या है, नॉर्मल मेल है तो क्या होगा, XY। अगर कैरियर फीमेल तो उसको आप लिखेंगे XCX। और अगर बेटा वो क्या है, डिजीज्ड फीमेल, तो डिजीज्ड फीमेल को आप लिखते हो XC। ये क्या होता है, रेयर होता है। सो दीज वर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट, also known as डाल्टनिज्म। इसको डाल्टनिज्म क्यों कहते हैं, बिकॉज डाल्टन जो कि केमिस्ट्री वाले हैं आपके, वॉज कलर ब्लाइंड। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एंड हियर रेड एंड green cones of eyes got affected। आपके पास जो बेटा 3 कोन्स होते हैं, कौन कौन से, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कोन। तो उसमें से ये बेटा रेड और ग्रीन जो आपका कोन होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। ऐसे पर्सन लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को ट्रेन चलाने के लिए, ठीक है, और भी कई सर्विसेज हैं वो नहीं कर पाते। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस। अब इसको एक दो मैं क्रॉस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से क्रॉस देखिए, XC ये क्या है, कलर ब्लाइंड है कौन, वोमेन। एक नॉर्मल मेल से करा दीजिए, दिस वन इज व्हाट, नॉर्मल मेल। गैमीट्स बनेंगे XC, यहाँ पे बनेंगे X एंड Y। यूनिट स्क्वायर बना लो बेटा, एक तरफ रख लो मेल X और Y, दूसरी तरफ आप क्या रख लो, फीमेल्स को XC। पॉसिबिलिटी क्या है, XCY, XCX एंड XCY। 50% फीमेल्स कैरियर, 50% मेल अफेक्टेड। ठीक है, लेट्स कंसीडर सेकेंड सिचुएशन। यहाँ पे ले लीजिए कैरियर फीमेल और नॉर्मल मैन को। ये क्या है, कैरियर फीमेल, ये क्या है, नॉर्मल मेल। गैमीट्स बनेंगे XCX, यहाँ पे बनेंगे X एंड Y। ऑल दीज आर व्हाट, गैमीट। ये भी क्या है,
गैमीट है, यूनिट स्क्वायर बनाइए, ऐसा ही कर लीजिए। एक्स सी वाई एक्स वाई। यहाँ पे देखिए कैरियर फीमेल, अफेक्टेड मेल, नॉर्मल फीमेल एंड नॉर्मल मेल। यानी 25% फीमेल्स आर कैरियर, 25% मेल्स आर अफेक्टेड, 25% फीमेल्स आर नॉर्मल एंड 25% मेल्स आर नॉर्मल। लास्ट में बेटा एक इम्पॉर्टेंट आपको बताता हूँ, कौन सा टेस्ट करते हैं। टेस्ट टू आइडेंटिफाई कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, इशियारा प्लेट से हम इसको टेस्ट करते हैं। सो दिस वन इज ऑल अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये भी क्या होती है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो करती है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को क्या करती है, फॉलो करती है, जो कि मैंने आपको हीमोफीलिया में बताया था, वैसे यहाँ पे भी आप क्रॉस करके देख सकते हो। अब हम देख लेंगे फटाफट नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में। तो यहाँ से देखिए नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। एक डायलॉग कॉमन है, एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये दो तरह की होती है बेटा। फर्स्ट एक्वायर्ड क्यों होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। दूसरा होता है कंजेनाइटल। ये क्या होता है, ड्यू टू विजुअल पर्पल डेफिशिएंसी। ओके, सो इसमें होता क्या, रात में हमको दिखाई नहीं देता है। विच affect the function of rod, it means that people are not able to see during night, उनको रात में नहीं दिखता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। आप हमारे जितने भी डिसऑर्डर्स थे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक ऑलवेज, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।